Hi students, my name is Nikhil Kumar and welcome to another session on editorial analysis. And as usual, I have pulled this editorial out from the Hindu newspaper, and this editorial is based on data protection bill. So without wasting much time, let's go and have a look at this editorial. This is the editorial here in front of you. In case you haven't gone through it yet, what you can do is you can take a screenshot of it, pause the video, take a screenshot of this, and then unpause the video, and then I will take you through this entire editorial, and we will discuss this in depth, and we will discuss all the details which are necessary for this editorial. All right, okay, so fine, assuming that you are already through with this editorial, let's have a look at it. It says falling short on data protection provisos. So falling short, what does falling short means? Means you were almost there, but you didn't touch the finishing line. You couldn't complete the task the way you had anticipated or expected, or you in a way you let down to some extent. Okay, so falling short. Where have you fallen short? On data protection provisos. Provisos is nothing but provision. It's like a condition attached to an agreement. Okay, so then we have got a subheading as well. What does it say? Joint Parliamentary Committee. Now, what is Joint Parliamentary Committee? It's as the term suggests, it's a joint committee of upper and lower house, which is formed for on certain occasions when something has to be investigated or discussed or looked into. Okay, so JPC bill gives much leeway. So JPC has probably come out with the bill. Maybe it has scrutinized it, it has gone through it, maybe it has made some changes. So that is why it is called, the editorial is calling this bill as JPC bill. So JPC bill, it seems as JPC has given clean sheet to this bill. So JPC bill gives much leeway. What is leeway? Leeway is freedom or scope, you can say, to government. So government has got a lot of freedom. Okay, so although it's a bill, and bill is more like, it's supposed to become a law, so a law should be unbiased, but here it seems that government is getting a lot of freedom thanks to this bill. Leeway to government to exempt its agencies from data protection provisos. Okay, so this bill is on data protection. Now just to give you a brief background, the bill seeks to provide for protection of personal data of individuals and establishes a data protection authority for the same. Okay, so in a way it is providing a mechanism कि कैसे personal data को, individual के data को protect किया जाएगा. Okay, and the bill governs the processing of personal data. So how it will be processed, what will be the mechanism, किन केसेस में ये पर्सनल डेटा रिवील कर सकते हैं, किन एजेंसीज को एक्सेस है, किन को नहीं है, कौन से सर्कमस्टेंसेस में हो सकता है, किस में नहीं हो सकता है. सो इट गिव्स द एंटायर प्रोसीजर एज फार एज दिस पर्सनल डेटा इज कंसर्न. सो इट हैज़ बीन मोर देन 3 years सिंस अ ड्राफ्ट बिल ऑन पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन. तो 3 साल पहले एक ड्राफ्ट क्राफ्ट किया गया था. किसने किया था? जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी ने, ओके, ऑफ एक्सपर्ट्स, एंड सबमिटेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन 2018. 3 साल हो चुके हैं इस बात को, जो पहला ड्राफ्ट बना था. 2 years सिंस अ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, 2 साल से, उसके बाद से 2 साल से जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी वाज सेट अप टू स्क्रूटिनाइज अनदर वर्जन. 2 साल से ये कमेटी स्क्रूटिनाइज करी. व्हाट इज स्क्रूटिनाइज? डाइसेक्टिंग एंड बाइसेक्टिंग इट और एनालाइजिंग इट, गोइंग डीप इनटू इट, समझ रही हैं क्या चेंजेस करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए. 2 साल लग गए इस कमेटी को. फिर ये द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 बना दिया इन्होंने. तो 2018 में ये बिल आया होगा. ओके, 2 साल लिए इन्होंने, 18 और 19, और टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19 उन्होंने बना दिया पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019. इट वाज फाइनली अडॉप्टेड बाय इट ऑन मंडे. तो ये कमिटी ने बोला कि हाँ जी, हमने सारे चेंजेस कर दिए. दिस इज द बिल, एंड व्हाट इज इट कॉल्ड एज PDPB 2019, और अडॉप्ट हो गया. चलिए, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है. But as dissent notes submitted by some panel members from the opposition point out, so obviously opposition members have submitted dissent notes. What are dissent? That means they disagree. Disagreement notes भेजे उन्होंने. The draft falls short of the standard set by the Justice Sri Krishna Committee, जो पहले, जिसने सबसे पहले ड्राफ्ट किया था 2018 में, रिमेंबर.
उसके स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर पाया। ये आपका 2019 वाला जो जेपीसी ने बनाया है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने, बहुत 2 साल लेके जो ऑपोजिशन बोल रहे हैं भैया ये 2018 वाले को मीट नहीं कर पाया, इसमें काफ़ी फ्लॉज रह गए, कुछ प्रॉब्लम रह गई, कुछ शॉर्टकमिंग्स रह गई, ठीक है। टू बिल्ड अ लीगल फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन द लैंडमार्क जजमेंट, so Justice Krishna committee had built a legal framework based on this landmark judgment, ये Justice K.S. Puttaswamy versus Union of India on privacy। तो प्राइवेसी का कोई केस चला होगा, उसके बेसिस पे ये जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी ने 2018 में एक ड्राफ्ट तैयार किया था। और अपोजिशन मेंबर्स कह रहे हैं कि नहीं, आपको 2019 वाला जो बिल है ना वो 2018 के मुकाबले थोड़ा कमजोर है। The key divergences, now divergences is again disagreements from the, और divergence disagreement हो सकता है, deviation भी हो सकता है, यहाँ पे deviation बोल देते हैं। श्री कृष्णा कमिटीज ड्राफ्ट बिल आर इन द सिलेक्शन ऑफ द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी डीपीए। ठीक है जी। सो पहला तो इसने बताया कि क्या डिफरेंसेस हैं जो 2018 वाला बिल था और अभी आपका 2019 वाला। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन इट कम्स टू सिलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जो अथॉरिटी की जो आप सिलेक्शन करते हो, चयन करते हो, इसी में फर्क आ गया। विच शैल प्रोटेक्ट द एंड दिस DPA shall protect the interest of data principals and the leeway provided। तो सेकेंड डिफरेंस क्या है? पहला तो ये हो गया सिलेक्शन, दूसरा leeway provided to the union government to exempt its agencies from the application of the act। so what does it say? दो प्रॉब्लम है जो 2018 में नहीं थी, 2019 वाले जो आपकी जेपीसी ने तैयार किया है। पहला तो सिलेक्शन प्रोसेस और दूसरा है जो एक एडवांटेज, लीवे इज द एडवांटेज ऑफ फ्रीडम गिवन टू द यूनियन गवर्नमेंट टू एग्जेम्प्ट। अब देखो होता क्या है, अब इसको देख सकते हो, जो बिल है ये टेकिंग कंसेंट बिफोर प्रोसेसिंग डेटा इज मैंडेटरी। ठीक है जी, तो ये आपको कंसेंट लेनी पड़ती है, बट यहाँ पे टू मेनी एग्जाम्पशंस दिए हुए हैं, टू मेनी एग्जाम्पशन हैव बीन प्रोवाइडेड टू इट विच एंड्स अप डाइल्यूटिंग द प्रोविजंस पावर। तो पहले था कि भैया आप एक प्रोसेस है, ठीक है, कुछ केसेस में प्रोसेस आप ना भी फॉलो करो, कंसेंट ना भी लो, बट उसके लिए भी बहुत ही स्ट्रिक्ट क्लॉजेस थे। यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे काफी एडवांटेज दे दिया और एक्सेप्शंस बहुत सारे कर दिया। सो द पावर्स एंड फंक्शंस, ये मैं थोड़ा आपको और इसका बैकग्राउंड दे देता हूँ जो चेंजेस हैं। पावर्स एंड फंक्शन दैट वर ओरिजिनली इंटेंडेड टू बी परफॉर्म बाय द अथॉरिटी, जो पहले अथॉरिटी को ही करने थे, हैव नाउ बीन एलोकेटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थोड़ी पावर ज्यादा आ गई है, ओके, उनके पास फ्रीडम ज्यादा आ गई है। एग्जेम्प्ट भी वो अपने हिसाब से एजेंसीज को कर सकते हैं, ओके, इसके बारे में और इन डेप्थ बताते हैं। While 2018 draft bill allowed for judicial oversight, जो 2018 डिफरेंसेस ही चल रहे हैं, देखो 2018 में जुडिशियल ओवरसाइट थी। क्या जुडिशियल ओवरसाइट रिफर्स टू द प्रोसेस बाय विच द जुडिशियरी एग्जामिन्स द लीगैलिटी ऑफ एनी एक्शन ऑफ अ पर्सन और अथॉरिटी, पब्लिक और प्राइवेट। ठीक है, तो संक्षिप्त में ब्रीफ में समझ लेते हैं। जुडिशियल ओवरसाइट कुछ नहीं है भाई, जुडिशरी जो आपके ये कोर्ट्स होते हैं, जजेस होते हैं, ये एग्जामिन करते हैं कि लीगैलिटी की कितना सही है कितना गलत है, कि कहीं ना कहीं आप अपने हिसाब से डिसाइड नहीं कर सकते, जजेस और कोर्ट डिसाइड करता है उसका भी। आई मीन जुडिशियल हैज गॉट अ से इन इट, इट हैज गॉट अ रोल टू प्ले। तो 2018 जहां 2018 वाले में कोर्ट का रोल था, वहां 2019 बिल रिलाइज इंटायरली ऑन मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट। तो सारी पावर तो गवर्नमेंट के पास है इन दी सिलेक्शन प्रोसेस। ये बताया इसने, सिलेक्शन प्रोसेस की बात हो रही थी, अब इसने इन डेप्थ बताया कि भैया पहले जुडिशियल ओवरसाइट भी होती थी, अब क्या हो रहा है, अब तो सिर्फ गवर्नमेंट ही कर रही है। इन कॉन्ट्रास्ट to 2018 bill that again the differences continue. In contrast to the 2018 bill that allowed for exemptions to be granted to state institutions from acquiring informed consent from data principals. So 2018 में exemption मिलती थी to be granted to state institutions from acquiring informed consent. कंसेंट लेने से एग्जाम्पशन मिल सकती थी, और टू प्रोसेस डेटा इन केस ऑफ मैटर्स रिलेटेड ओनली टू सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, एंड ऑल्सो कॉल्ड फॉर अ लॉ टू प्रोवाइड फॉर पार्लियामेंट्री, यहाँ पे पार्लियामेंट्री ओवरसाइट भी होती थी, पार्लियामेंट का भी से होता था। सो इट वॉज नॉट कंप्लीटली डन बाय द अथॉरिटी और द गवर्नमेंट। वहाँ पे था कि भैया आपको कंसेंट नहीं लेनी है कुछ केसेस में, मान ली तो वो कौन सा केस होता था, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, दैट्स इट। Okay, so when it comes to accessing data, personal data, or revealing it out or giving it to the third parties,
तो ये आपका डेटा है, वो एक्सेस कर रही है गवर्नमेंट एजेंसी, कर सकते हो, और कंसेंट की जरूरत नहीं है, मान लिया, बट उसे सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के केस में होता है, तो वहां पर भी पार्लियामेंट हैड अ रोल टू प्ले, पार्लियामेंट कुड इंटरवीन, पार्लियामेंट कुड एग्जामिन द केस। एंड जुडिशियल अप्रूवल भी था, जुडिशियल अप्रूवल ऑफ नॉन कंसेंशुअल एक्सेस टू पर्सनल डेटा, ठीक है, जहां पे आपको कंसेंट नहीं मिली है वहां पे भी आपको जुडिशियल अप्रूवल, तो कई चीजें थी, जुडिशियल अप्रूवल था, पार्लियामेंट्री ओवरसाइट थी, एंड इट वाज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। नाउ व्हाट इज द 2019 बिल सेज, इट एड्स पब्लिक ऑर्डर, इन्होंने एक पब्लिक ऑर्डर करके एक डाल दिया है क्लॉज, एज अ रीजन टू एग्जेम्प्ट एन एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम द एक्ट। पब्लिक ऑर्डर के बेसिस पे उनकी कोई भी एजेंसी एग्जेम्प्ट हो जाती है, दे डोंट रिक्वायर कंसेंट्स, दे डोंट हैव टू फॉलो the standard mechanism, the standard procedure, okay, when it comes to accessing the data. So तो कहीं ना कहीं बात ये चल रही है, पब्लिक ऑर्डर के नाम पे आप तो फिर जो मर्जी आए डेटा एक्सेस कर लोगे, कोई भी आपकी एजेंसी कर सकती है, यू डोंट नीड एनी परमिशन, यू डोंट नीड एनी कंसेंट, ना कोई जुडिशियल अप्रूवल की जरूरत है, ना पार्लियामेंट्री ओवरसाइट है। रीजन भी पहले सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट ही माना जाता है, अब पब्लिक ऑर्डर के नाम पे कोई भी रीजन चल सकता है, कोई रीजन देना ही नहीं है इनफैक्ट, बिसाइड ओनली प्रोवाइडिंग फॉर दोज रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, ठीक है, बस राइटिंग में आपको देना है, दैट्स इट। As JPC member from Rajya Sabha, the Congress Jairam Ramesh rightly mentions in his dissent note. So the author believes that whatever Jairam Ramesh has actually raised an objection, and he feels that he has done it very rightly. The government must always comply. Comply means follow the rules. Comply with the bill's requirement of fair and reasonable processing, ठीक है, and implementing the necessary safeguards, which requires that the exemption granted in writing should at least be tabled in both houses of parliament. कि अगर आप चाहते हो कि जो रिक्वायरमेंट है वो फेयर हो, रीजनेबल हो, रीजनेबल प्रोसेसिंग और इम्प्लीमेंटिंग हो, नेसेसरी सेफगार्ड्स लिए गए हों, और इसके लिए ज़रूरी है कि अगर आप एग्जेम्पशन दे रहे हो तो एटलीस्ट लोकसभा राज्यसभा में उसको टेबल तो करो, उस पर डिस्कशन तो करो, ज़रा बात तो करें। बट दैट वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय जेपीसी। जेपीसी बिल नहीं, हम नहीं कर रहे हमने तो डाल दिया 2019 बिल में, ऐसे ही रहेगा। His note also points out to the dangers of exemption on the grounds of public order. Once again कि public order के नाम पे आप कैसे exemption ले रहे हो, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी मान सकते हैं, ओके, दैट इज फाइन। फिर उसके अलावा एक प्रोसेस होना चाहिए, मैकेनिज्म होना चाहिए, जैसे 2018 में था, जुडिशियल अप्रूवल चाहिए, पार्लियामेंट्री ओवरसाइट चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं। पब्लिक ऑर्डर एज इट इज ससेप्टेबल, ससेप्टेबल मीन्स समथिंग विच कैन बी इन्फ्लुएंस्ड और हार्म्ड। तो मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ आपको, पेशेंट्स विद liver disease may be susceptible to infection, infection को लग सकता है, as it is susceptible to misuse and not limited to security of the state। भाई आपने तो public order बोल दिया, so now it has gone beyond the security of the state, which is recognized by other data regulations such as, अब इसने एक और एग्जाम्पल दे दिया, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन यूरोप का, तो उसने वहाँ का भी दिया है, ठीक है, एज अ वायबल रीजन फॉर एग्जाम्पशन। तो वायबल मीन्स feasible। I've given a sentence to you here as well. The proposed investment was economically viable, means economically feasible, it was doable, it could be done. इतने पैसे थे, इतना फंडिंग था कि हम इसे कर सकते थे, ओके। Anyway, October 21, the Global Privacy Assembly featuring privacy commissioners from over, अच्छा ये दूसरी कंट्रीज का एग्जाम्पल दे रहे हैं जरा, including those from the European Union, Japan and the UK, came up with a clear resolution on principles for government access to personal data. In its तो ये देखिए यहाँ पे principles दी हुई हैं। In its resolution, the Assembly asked for a set of principles on legal basis, need for clear and precise rules, proportionality, transparency, data subject rights, independent oversight, effective remedies. Remedies means something that relieves or cures a problem or illness. Okay, redress to the individuals affected, fix a problem, making amends. तो बोल रहा है कि देखो दूसरी कंट्रीज देखो, जो 19 कंट्रीज हैं जिनमें जो यूरोपियन यूनियन, जापान, यूके ये सब इसमें शामिल हैं, इनके प्रिंसिपल्स देखो, इनकी सर रिक्वायरमेंट्स देखो कितनी सारी, लीगल बेसिस है, नीड फॉर, ये सारे आपके A, B, C, D, ये सारी लीगल, इतनी सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स है। ही इज जस्ट सेइंग, देखो ना बाहर वाली कंट्रीज भी तो देखो जरा। एज द GPC's adoption of the draft bill and the dissent notes appended means adding something at the end। यहाँ पे मैंने दिया है एक एग्जाम्पल, द रिजल्ट्स ऑफ द सर्वे आर अपेंडेड टू दिस चैप्टर, मतलब जो रिजल्ट्स हैं वो लास्ट में ऐड कर दिए गए चैप्टर में, ओके। एनीवे, डिसेंट नोट्स अपेंडेड टू इट सजेस्ट इट हैज फॉलन शॉर्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स
प्रोटेक्टिंग प्राइवेसी राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। तो आप देखो ना, ऊपर इतने सारे थे, इसमें आपने कुछ भी नहीं रखा, यहाँ पे बस आपके पास एक पब्लिक ऑर्डर के नाम पे कुछ भी आप कर रहे हो। ओके, यू हैव टेकन ऑल द लिबर्टी। So he's just giving citing examples that look at those 19 countries. They are also following so many standards. Look at those legal bases, need for clear, precise rules, proportionality, transparency, data subject right, blah blah blah, so many things. Here you don't have it. It has clearly fallen short of standards protecting privacy rights of individuals against blanket misuse by the state. So state blanket misuse, total misuse. It is now the task of Parliament. So now once again the author is suggesting, so it's a suggestive tone in the last line, it is now the task of Parliament to tighten the provisions further and bring them in conformance, means complying with standards of following the rules, bring them in conformance with the 2018 bill. तो बोल रहा है कि जो 2018 में आपका बना था स्टार्टिंग में ड्राफ्ट, now it is the role, now this is what the Parliament should do, they should ensure कि उसके standards को meet कर पाए. That's all. I think that's it. That's the end of the editorial. I hope you understood this editorial. In case you still have any doubts, any concerns, please feel free to post a comment. All right, I'll get back to you. You can also get in touch with me on the number and the email ID and the website given above. Okay, and yes, if you are preparing for some entrance exams, or you are just improving and enhancing your reading stamina and reading skills, then do subscribe to my channel so that you can be a part of more such editorial analysis. All right, okay, then take care, goodbye, and I'll see you again. Goodbye.